Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा। Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. Hello listeners and welcome to Radio Zindagi 1550 AM and 99.7 FM HD3. मैं हूँ ईरा और शो का नाम यहाँ है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। एक बैलेंस लाइफस्टाइल जो होता है ना, उसकी वो आपकी मदद करता है एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में। अब चाहे वो हेल्थ फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल ही क्यों ना हो। उसी तरह अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, लाइफ होती है, उसकी क्वालिटी बेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है वास्तु के बनाए हुए रास्ते पे चलना। जी हाँ, वास्तु शास्त्र इस बात का वादा तो नहीं करता कि आपकी लाइफ में जो कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सब गायब हो जाएंगी, दिक्कतें नहीं होंगी आगे से कभी, लेकिन वास्तु आपको देता है एक ऐसा मीडियम जो मुश्किल वक्त में आपको सहारा देता है और हमेशा देता रहेगा आपकी भलाई के लिए। Vastu enhances your health and vitality. It improves your relations and the way you deal with other people. Vastu also helps in creating a harmonious and tranquil atmosphere in your house and workplace. और बात कर रहे हैं workplace की, तो भाई वास्तु also promotes financial prosperity. It overall helps in creating a stress-free and supporting environment. और इसलिए थर्सडे को 3 से 4 बजे हमारे साथ स्टूडियो में होती हैं the most renowned वास्तु शास्त्र consultant Dr. Reva Kumar, वास्तु specialist. Reva Kumar ji, who has around 30 years of experience and has also been honored by President Obama. आपके सवाल होंगे और रेवा जी के जवाब होंगे। रेवा जी, who is the GPS in our everyday life and Wikipedia to get all the information to get prosperity, health, wealth, fame in home and business. और रेवा जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, she has studied with the world renowned spiritual gurus of India. एंड रेवा जी ने अपने कई क्लाइंट्स की हेल्प की है उनके घर डिजाइन करने में, बनाने में, लाइफ पार्टनर ढूंढने में, प्रमोशंस पाने में और अटके हुए पैसे फ्री करवाने में, कर्जा हो या लीगल परेशानियां हो उनको सॉर्ट करने में, सेहत इंप्रूव करने में, और ये सब होता है बिना रीमॉडल या रेनोवेट किए। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, मिर्च मसाला रेस्टोरेंट इन मिलपीटर्स एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट। और रेवा कुमार जी, वास्तु कंसल्टेंट, शी इज अ ट्रेजर ऑफ एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ more than 30 years, who can spiritually change that do not need major alterations at home or office. Her specialty is the use of pyramidology, crystals, metal, wood and color therapy. She has the expertise of understanding the influential balance of 5 elements of nature, electromagnetic and cosmic energy in our surroundings. So let's call Reva Kumar ji, the Vastu consultant, to maximize the effect of these powerful energies to create an aura of positivity, peace, harmony, health, prosperity and utility in our lives. आप उनसे अभी बात कर सकते हैं। स्टूडियो में नंबर है 5107701550। बस थोड़ी ही देर में जो है लाइंस खुल जाएंगी और अगर आप उनसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं शो के बाद में तो उनका नंबर है 5108683338। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net और आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, वेलकम टू योर ओन शो। नमस्कार ईरा जी। जी हाँ लिसनर्स, आपको भी मेरा बहुत ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, ईरा से मैं बहुत देर से देख रही थी कि ईरा आपको बता रही थी डिवाइन वास्तु के बारे में। लिसनर्स, मैं बस थोड़े से ही बताना चाहती हूँ कि डिवाइन वास्तु याद रखिए सिर्फ मेरा ही नहीं है, वास्तु आप सबका पूरे संसार से जुड़ा है। अगर वास्तु इसको नहीं कि अगर हमारे साथ में प्रॉब्लम्स हैं तो ही हमारे को ध्यान देना है कि कहीं वास्तु का डिफेक्ट है या कहीं पॉजिटिव एनर्जी नहीं है या क्या है या एनर्जी वास्तु है, व्हाट इज गोइंग देयर। जी नहीं,
अगर आपके पास में अच्छा है, ये और भी अच्छा करता है। अगर वहां पे कुछ कमी है, कुछ परेशानी है, तो ये उनको भी खत्म करने में मदद करता है। जैसे आपकी अपनी बॉडी है, आपके बॉडी को भी तो 5 एलिमेंट्स की जरूरत है। उसी तरह से इरा हमारी पूरी ड्वेलिंग को या हमारे वर्क प्लेस को या बिजनेस को, हर की चीज को जरूरत होती है इन्हीं 5 एलिमेंट्स की। और जब तक हमारे पास में अगर ये बेसिक जिससे एनर्जी मिलती है, इन्हीं 5 एलिमेंट से तो आपको एनर्जी मिलती है। जी हाँ। एयर नहीं होगी तो आप सांस नहीं ले सकते हैं। फायर है जो आपके अंदर एक पैशन लेकर आती है, आपको भूख लगती है। वाटर है जो आपकी थर्स्ट को खत्म करती है। तो स्पेस आपको चाहिए होती है। आप कहते हैं, कई बैठे कहते हैं कि आई नीड दिस स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए। चाहे वो हम अपने रिलेशंस में भी ले लीजिए, फिजिकली ले लीजिए, मेंटली ले लीजिए, इमोशनली ले लीजिए, हर चीज में भी वांट। तो उसी तरह से ही यही आपके साथ ये 5 एलिमेंट्स जुड़े हैं। जैसे कि हमारे को अपनी बॉडी के लिए, वैसे हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए, हमारे घर के लिए हमारे को एनर्जी इन्हीं से ही मिलती है। अब यहां पर अगर कोई कमी आ जाती है तो वहां से हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं? हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई, हम ग्रो नहीं कर पाए, या हमारे साथ में आप कह सकते हैं कि बहुत सफोकेशन सी हो रही है, चाहे ऑफिस है, चाहे घर है, और आपको होम है, ऑफिस है, वहां से एवरीवन इज अपोजिंग यू, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। या अगर हमारे साथ में फैमिली है, कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सब चीजें आती हैं इन्हीं 5 एलिमेंट से जुड़े। जब इनमें ऊपर नीचे हो जाएगा तो यहां से हमारे साथ में स्ट्रेस, परेशानियां आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। जहां हम इनको बैलेंस करेंगे वहीं हमारे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली रेवा जी, और आप बोल रही हैं 5 एलिमेंट्स से ही लाइफ में एनर्जी आती है। टॉकिंग अबाउट रेवा जी, टॉकिंग अबाउट एनर्जी, रेवा जी मेरे पास में कुछ एक सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आपको लगेगा कैसा एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। ये जो बेसिक एनर्जी होती है, उसका सोर्स क्या होता है और हम क्या कर सकते हैं उसको बूस्ट करने के लिए? हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, वास्तु प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम कैसे कर सकते हैं? देखिए इरा, ऐसा होता है कि जो सोर्स ऑफ बेसिक लाइफ एनर्जी अगर हम लेते हैं, बेसिक जो हमारे को लाइफ एनर्जी के लिए चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई इंसान को पता है कि हमारी जो फायर एंड वाटर, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। मतलब कि जहां अगर आप देखिए कि घर में एक औरत है, दिन भर काम कर रही है, सारा दिन वो अपना एज अ हाउस वाइफ भी है या वर्किंग वुमेन भी है। हाउस वाइफ है तो घर का सारा उसको कोर्स करना है या किचन ठीक करना है, सब कुछ करना है, ऑल थिंग्स आर देयर। तो अब वुमेन है, फीमेल है, उसको हमने वीनस के साथ में रिलेटेड करते हैं। साउथ ईस्ट में हम बोलते हैं कि फायर है, साउथ ईस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि साउथ इज रिलेटेड विद द मार्स प्लैनेट एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट को लेते हैं दैट इज रिलेटेड विद द वीनस प्लैनेट। अगर उससे आता है, फीमेल से रिलेटेड है, किचन है और फायर के साथ में है, तो उस समय में हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है कि फायर एलिमेंट जो एनर्जी हमारे को दे रहा है वो कैसे चले। साथ ही साथ में आ जाती है हमारी वाटर एनर्जी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को इनर स्ट्रक्चर से भी, हम आउटर स्ट्रक्चर से भी ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी बेसिक है, ये हमारी बेसिक लाइफ एनर्जी है। दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज, फायर एंड वाटर। तो कोई भी अगर हमारा घर है या हमारा बिजनेस या कहीं है, अगर हमारे ये 2 एलिमेंट्स बैलेंस है, इन एलिमेंट्स में अगर कहीं कमी नहीं है, तो हमारे को कहीं पे भी इस तरह की परेशानियां नहीं आती। अब आ जाता है सवाल एक कि जैसे कि मैंने कई बार जिक्र भी किया कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो बिल्डिंग में हो, दे आर हैविंग देयर ओन इन्फ्लुएंस। हर किसी पर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, एक इन्फ्लुएंस होता है, चाहे उनकी वो हेल्थ को लेकर आया जाए, उनकी प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है, उनकी मनी को, हर चीज को लेके। इवन की साइंटिस्ट हैज ऑल्सो सजेस्टेड कि जो हमारा अर्थ है उसको पास भी बहुत ही हैज ह्यूज मैग्नेटिक, जिसको आप कह सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल में। जब अब ऋषि मुनि थे बहुत ही, तो उस समय भी वो इसको देखा करते थे कि इस एनर्जी का क्या इन्फ्लुएंस होता है एक ह्यूमन बॉडी पे या माइंड के ऊपर में। अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि आपके जो हेड है दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी। उसी तरह से जो हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्थ की तरफ से आती है, तो उससे नॉर्थ आपस में अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक एनर्जी को मिलने से, मैग्नेटिक एनर्जी की तरह मैं बात कर रही हूँ, तो क्या मिलता है? रिपल्शन मिलता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज यू कि क्योंकि
जो अगर आप नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है, और उससे क्या होगा कि आपको नींद आपको प्रॉपर नहीं आएगी, या आप स्ट्रेस ले लेंगे, डिप्रेशन पे आ जाते हैं। क्योंकि हर किसी को एक परफेक्ट जो भी बॉडी होगी वो यही चाहती है कि हमारी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमारा बैलेंस रहे, उसमें कहीं कमी नहीं हो। तो तभी हमने क्या कहा है, आप कभी ध्यान से देखें, मेरा हमेशा एक होता है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी मैं ले रही हूँ वो मैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ लेके जा रही हूँ। अब जो सन राइज कर रहा है वो नॉर्थ ईस्ट से राइज कर रहा है, करते 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 वो सन सेटिंग करते हुए क्लॉकवाइज जा रहा है, तो साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। सो जब मैं उसको डिवाइड करूंगी किसी पीटी वैल्यू को, तो वो सेंटर जो मैं डिवाइड करूंगी वो मैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डिसाइड करूंगी। तो अब आपको क्या करना है, जब आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे को वहां से वाटर और फायर को ही हमने बैलेंस करते जाना है जी। अब देखिए, अर्थ है, अगर हमारा साउथ वेस्ट में है, अगर साउथ वेस्ट में हमारा अर्थ एलिमेंट है या वहां पर स्विमिंग पूल है, अब यहाँ पे ही हमारे को बहुत समझदारी चाहिए, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ लोग कह देते हैं कि अब तो वास्तु बहुत इजी हो गया जी, हमने तो गूगल पे पढ़ लिया, हमने ऑनलाइन पढ़ लिया, या रेवा जी ने बता दिया, या ए ने बताया, बी ने, सी ने बताया, हमने तो देख लिया, नॉर्थ की तरफ सर करके सो जाइए, या साउथ की तरफ सर करके सो जाइए, या वेस्ट की तरफ सर करके सो जाइए। लेकिन आप ये देखिए, आपने ये पॉइंट्स तो नोट कर लिए, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं। अगर स्विमिंग पूल हमारा साउथ वेस्ट में है, जो कि एज अ वास्तु प्रिंसिपल साइंटिफिकली लॉजिकली कि वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ को आपने डिग कर दिया, आपने जमीन को डिग किया स्विमिंग पूल के लिए। अब उसको मेरे को शिफ्ट करना है। अगर कोई भी वास्तु एक्सपर्ट होगा वो इसको प्रॉपर शिफ्ट करेगा। वो शिफ्ट करने से पहले ये जरूर देखेगा कि उस प्रॉपर्टी के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या वाटर एलिमेंट का क्या स्पेस है, वहां पर वाटर एलिमेंट की क्या पोजीशन है, वो कितनी डिग्री से उसको लेकर शिफ्ट कर जा सकता है, देन इट वर्क्स। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमने तो स्विमिंग पूल को वैसे का वैसे ही शिफ्ट कर दिया, चाहे हमने उसको ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कि अगर ऑलरेडी वहां पर वाटर एलिमेंट है और आप इसको जब शिफ्ट कर रहे हैं, आप उसकी डिग्री को पूरा देख नहीं रहे, किसी चीज को तराजू लेते हैं तो आप तोलते हैं उसको, आप देखते हैं कि मुझे उसको पूरा इक्वल करने के लिए, उसका वेटेज बराबर करने के लिए कितना चाहिए, बैलेंस करने के लिए। द सेम थिंग ओवर हियर, वी हैव टू बैलेंस इट। उस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, उस फ्लो को आपने बैलेंस करना है। अब जब वो फ्लो में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, उस फ्लो की एनर्जी को ले रही हूं, जो मैं सन की एनर्जी को ले रही हूं, क्या उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रही जी। ऑब्स्ट्रक्शंस क्या, वहां पे हडल्स तो नहीं है। वो ऑब्स्ट्रक्शन हडल्स क्या है लिसनर्स, वो आ जाती है जहां हम नॉर्थ ईस्ट से देख लेते हैं, जहां से स्टार्ट करना है, कहीं वहां टॉयलेट तो नहीं है, साउथ वेस्ट जहां एंड करना वहां बाथरूम तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं किचन तो नहीं है, साउथ वेस्ट में किचन तो नहीं है। अब आ जाइए बीच में एक जगह आ जाती है हमारा सेंटर पॉइंट भी। अगर ये आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स बेसिक बता रही हूं, वैसे हम 7 पॉइंट्स को इसको लेकर चलते हैं, लेकिन 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर में कहीं स्टेयर्स हैवी तो नहीं है, सेंटर में कहीं बाथरूम तो नहीं है स्टेयर्स के नीचे, सेंटर में कहीं किचन तो नहीं है, या ब्रह्म स्थान जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द हाउस, वो हमारा ओपन है कि नहीं है जी। जहां पे ये तीनों चीजें हमारी क्लियर हैं, वहां पर आपका एनर्जी फ्लो बहुत ही अच्छा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है एनर्जी की आपको जी, कहीं पे नहीं है। अब इस एनर्जी को बूस्ट करना है, आपका सवाल है, आप कहते हैं बूस्ट करने के लिए। अब इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारी जो 5 डायरेक्शंस हैं, उन 5 डायरेक्शंस के बीच में, जैसे कि मैंने बोला आपको, वाटर है, एंड वाटर इज रिलेटेड विद द नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम लेते हैं नॉर्थ ईस्ट लेते हैं। और यहां से हमारे को क्या मिलता है, न्यू आइडियाज मिलते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलती है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमें कुबेर को जैसे बोलते हैं डोमिनेट करता है। अब इसको हमारे को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जिसको आप प्रॉपर नॉर्थ से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल शेप से भी, या जो भी हमारे टूल्स हैं उनसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हम लेके जाते हैं फायर एलिमेंट को लेके जाते हैं साउथ ईस्ट से, जो हमारे को ड्राइविंग फोर्स देता है और जो हमारे को कॉन्फिडेंस लेकर आता है, एंथुसियाज्म लेकर आता है, क्योंकि वो पैशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है। इसको हमारे को भी बैलेंस प्रॉपर करना है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, या अगर यहाँ पे वाटर एलिमेंट है तो उसको रेक्टिफाई करना है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट
एलिमेंट इज रिलेटेड विद द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब जो अर्थ एलिमेंट है साउथ वेस्ट है, वहां वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वहां के लिए हमारे को क्या चाहिए? अर्थ एलिमेंट के लिए जो हमारे को स्टेबिलिटी देता है, जो आपको लॉन्गेविटी देता है, बैलेंस देता है, मैच्योरिटी देता है, आपका बिहेवियर, रिलेशन, पीस, हार्मनी, एवरीथिंग इज देयर। वहां हमने उसको संजो के रखना है, उसको स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए आपको अर्थ एलिमेंट के लिए साउथ वेस्ट में कहीं पे भी हमें वाटर एलिमेंट नहीं देना है। फिर आ जाता है हमारा एयर एलिमेंट आ जाता है, जहां से हम जॉय पाते हैं, हैप्पीनेस पाते हैं, ग्रोथ है और फैमिली को एक्सटेंड करते हैं। दैट हैज टू बी ऑल्सो इनहेंस्ड विद द प्रॉपर शेप्स, जो शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेस। स्पेस के लिए जैसे आपको बात करी थी कि जो हमारे को आप कह देते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन देती है, जो हमारे को स्पेस देती है, या हमारे को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना सिखाती है, जो हमारे को एक तरह तक की आप कह सकते हैं कि इन्हेंसमेंट करती है एनर्जी को, हर किसको। जो हमारे को अगर स्पेस है तो वी पीपल गेट द नॉलेज है, अवेयरनेस पाते हैं, हर किसी को समझने की अच्छे बेनिफिशियल आइडियाज पाते हैं। अब ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जिनको हमारे को प्रॉपर डायरेक्शन से रिलेटेड हैं। यही 5 एलिमेंट्स है जो हमारे एनर्जी लेकर आ रहे हैं, जहां से हमारे को फ्लो ऑफ एनर्जी मिल रही है, यहां से ही हमने इन्हीं डायरेक्शन से हमने इनको रेक्टिफाई करना है अगर इनके बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो हो जाता है हमारा एक सोर्स ले लिया हमने। सोर्स लिया। अब जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है वो कौन सी है? सवाल ये उठता है, उसको हम क्या बूस्ट कर सकते हैं विद द वास्तु? और वो लाइफ फोर्स एनर्जी कौन कौन सी है? सबसे पहली आ जाती है हमारी जो मेन लाइफ फोर्स एनर्जी है, दैट इज अवर हेल्थ एनर्जी। सेकंड आ जाती है हमारी मनी एनर्जी। थर्ड आ जाती है हमारी रिलेशनशिप एनर्जी। 3 एनर्जी हैं तो आप सोचिए सब कुछ है हमारे पास, सब है हमारे पास। कुछ है। अब अगर हेल्थ एनर्जी है, जहां से हमने अपनी हेल्थ भी कुछ सही रहे, क्या रीजन है अगर हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम है, या कहीं पे सोचते हैं कि आप बार बार बेवजह हम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि कोई भी वास्तु एक्सपर्ट अगर आपके पास में होगा वो एक ही चीज पे बिलीव करता है, दैट इज द कॉस्मिक एनर्जी। और कॉस्मिक साइंस वो है जो आपको एक अच्छा महसूस करने के लिए या गुड एनर्जी का आपको देती है, किसी भी नेगेटिविटी को दूर रखती है आपसे, जिसमें आपको कलर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप कहीं भी आपकी बॉडी है जैसे लो एनर्जी फील करिए, कहते हैं कि हमारा बीपी लो है, तो हम कुछ एकदम खाते हैं, एलमंड्स खा लिया या कॉफी पी ली, गरम गरम ले ली, इट मीन्स की लो एनर्जी फील कर रहे हैं। द सेम थिंग इज ओवर देयर। वी आर एंटरिंग द हाउस, कर रहे हैं बाहर से पहले आई वॉज वेरी मतलब कि एंजॉय कर रही थी, एवरीथिंग was going very in a nice way। लेकिन जैसे ही घर में हम कर कहते हैं अरे आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, फीलिंग वेरी लो, बहुत एनर्जी लो, तो एनर्जी लो कि आप फिजिकली लो एनर्जी मिल रहे तो आपने तो बादाम खा लिया, कॉफी पी लिया, इट इज ओके। लेकिन कई बार होता है कि हम ऐसी एनर्जी फील करते हैं कि हम लेटे हैं तो लेटे हैं, हम उठ ही नहीं रहे, मन नहीं मतलब कि मन नहीं कर रहा, बेवजह उदास है, आपका किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा, आप प्रॉपर, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड दैट इज द नॉर्थ ईस्ट एंड द सेंटर ऑफ द हाउस इज अफेक्टेड, देन यू आर हैविंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आ जाता है मनी एनर्जी। मनी पैसा तो है, ये सबको जरूरी है, आपको मेरे को सबको, किसके लिए है। अब हेल्थ के लिए भी, हर चीज के लिए भी हमारे को पैसे की भी जरूरत है, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट एनर्जी। कहते हैं ना कि जेब गरम हम गरम, हम गरम हम गरम, तो जेब गरम है, जेब नरम हम भी नरम, कि अगर पैसा है तो फिर आप पे जोश भी होता है, चलिए ये करें वो करें, आप गिफ्ट्स लाते हैं, एंजॉय करते हैं और आपकी फैमिली बहुत खुश रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस मनी को क्या हम, ऐसा तो नहीं है कि हमारे को आने में दिक्कत हो रही है, क्या हमारी अर्निंग में प्रॉब्लम है या हमारी सोर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तब वो अगर है तो जरूर हमारे पास में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, दैट इज कि जहां हम फायर को प्रॉपर नहीं ले पाते, जहां हमारे पास साउथ ईस्ट हमारे पास में गलत आ जाएगा, या हमारा साथ ही साथ में नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सेंटर तो लेते ही हैं, यहां पे अगर डिफेक्ट होगा तो हमारे को इन प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। फिर आ जाता है हमारा जो एक और एनर्जी का है, दैट इज द रिलेशनशिप एनर्जी। पैसा होगा तो घर में भी खुशी है, चाहे वो आप पार्टनरशिप है तो आपकी अच्छी चलेगी, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में भी है, अच्छी हेल्थ है, अच्छा पैसा है, आप स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं, अपना ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, अच्छा सबॉर्डिनेट्स के साथ सर्कल रहेगा, तो यू कैन अचीव मोर एंड मोर। अब उसके लिए भी आपको क्या जरूरी है कि आप उसका साउथ वेस्ट तो कहीं खराब नहीं है। अगर आप साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे हैं, जैसे कि कई लोग कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक बात कर रही हूं कि
एस्ट्रोलॉजी में अगर हमारे को ये पता चलता है कि आपका अगर राहु खराब है तो आपको साउथ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए जी। अगर एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि राहु खराब है तो साउथ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए, तो आप एक बात बताइए, आपका अगर खराब हो गया, अब दूसरा अगर आपका बेटा है उसका राहु अच्छा है तो क्या वो साउथ वेस्ट में सो सकता है? और वो है 15 साल का, फादर है मैरिड, उनका राहु खराब है। अगर किसी कोई कहता है कि राहु खराब है तो आप साउथ वेस्ट में मत सोइए, बिकॉज साउथ राहु की जगह, प्लैनेट की जगह है साउथ वेस्ट से। जी, आई डू एग्री कि राहु प्लैनेट की जगह साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट से है, परंतु अगर वो ये कहते हैं कि उनका बेटे का अगर राहु अच्छा है तो वो सो सकता है, तो मैं यहाँ कभी नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो डोमिनेट दे देगा, वो पावर दे देगा, वो सब कुछ दे देगा, वो बेटा डोमिनेट करेगा, चाहे वो 15 साल का है, वो इतना अग्रेसिव हो जाएगा कि वो फादर की बात नहीं मानेगा। तो हाउ कैन आई बिलीव इट कि प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में जिसकी हम पूरी रेस्पेक्ट करते हैं, प्लैनेट्स वास्तु में है जिसकी हम पूरी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे प्लैनेट में डिफेक्ट हो तो इसका मतलब आपको अपने घर का वास्तु भी खराब है। ऐसा नहीं हो सकता जी, क्योंकि स्ट्रक्चर वास्तु के बिना तो एनर्जी वास्तु है ही नहीं है। स्ट्रक्चर वास्तु मीन्स कि जहां बाहर का स्ट्रक्चर, अगर आपका शरीर बाहर से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर अंतरात्मा है जी, तभी दिखाई दे रहा है ना जी। तो पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं बाहर से दिखाई नहीं दे रही तो आपको कैसे पता कि रेवा के अंदर में क्या है? पहले मैं आपको दिखाई दूंगी, मेरा चेहरा दिखाई देगा, तभी आप मेरे बारे जान सकेंगी। द सेम थिंग, द स्ट्रक्चर वास्तु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका स्ट्रक्चर वास्तु सही है, अगर आपके स्ट्रक्चर वास्तु में कहीं कमी है तो वहीं से ही एनर्जी वास्तु भी साथ जुड़ जाता है। स्ट्रक्चर वास्तु से आप डायरेक्शंस लेते हैं, एनर्जी वास्तु से आप डायरेक्शंस को कभी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी से हम लोग एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, उसके अच्छे बुरे प्रभावों को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे डायरेक्शंस को कभी नहीं बदल सकते। तो अगर कहा जाता है कि स्ट्रक्चर वास्तु इज हैविंग ओनली 10 to 15% रेशियो इन वास्तु एंड द रेस्ट, द 84%, 85% द एनर्जी वास्तु वर्क्स, आई डिनाई फॉर दिस बीइंग अ specialist in the Vastu. I have done my PhD in Vastu. मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिन गुरु से भी मैंने सीखा, जो आज भी हैं, लेकिन ये ऐसा कहीं नहीं है। एनर्जी वास्तु, पहले स्ट्रक्चर वास्तु को हम बैलेंस करेंगे, जो साइंटिफिकली लॉजिक है, अगर वो सही है तो अगर आपको एनर्जी वास्तु की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्ट्रक्चर वास्तु गलत है तो आपके प्लेसमेंट्स भी, रूम की इंटीरियर भी गलत हो जाएंगी। जब वो गलत होंगी तो आपको एनर्जी वास्तु की उस समय कैसे समझ आएगी? तो आप अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ कि जैसे कई लोगों का हो जाता है, कि इसके बारे में हमने कई बार बात करी है और मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे स्पेशल मैंने इसके लिए अपना वेबसाइट पे भी डाला अबाउट दिस, कि इसको ठीक करने के लिए द बेस्ट वे, अगर आप शिफ्ट एनर्जी करना चाहते हैं, एनर्जी वास्तु करना चाहते हैं, तो द बेस्ट वे इज ओनली विद द हेल्प्स ऑफ द डिवाइन टूल्स, या जो हम इसके साथ ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर चलते हैं, इनसे ही आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। परंतु अगर आप सोचते हैं कि इस एनर्जी बैलेंस करने के लिए कोई जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक है, जिसको स्कैनर कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, किसी भी किस्म की, कहीं पे भी इसके नहीं है। इसका काफी स्टडीज करने के बाद भी देखा गया है कि जो भी ये इसको कह रहा है, इसके पीछे कहीं पे भी कोई इसका लॉजिक नहीं है। या आप घरों पे जाकर जो भी कहते हैं कि जैसे इसको मैं कहना चाहूंगी, जैसे घरों में वगैरह में कहीं पे भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को जिसको नापा जाता है, अगर इसको जो मेजर करने का दावा करते हैं, जिसमें जियोपैथी स्ट्रेस के बारे में भी बताते, कई बार लोग जिक्र करते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति इसकी ऑरा रीडिंग या इसको कौन सा इसको स्टोन पहनाना है, या इसे कौन सी दवा सूट करेगी, या कौन सी इसको एनर्जी चक्र में प्रॉब्लम है, यानी जो इस इंस्ट्रूमेंट से मैग्नेटिक जो जादू की छड़ी जो अपने आप को बताते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो इसका कहीं पे भी साइंटिफिक लॉजिक रीजन नहीं है। तो फिर अगर ये हो तो फिर डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है, फिर मेडिकल की जरूरत ही क्या है? तो सभी तो इंसान की सारी परेशानियां तो बैठे बिठाए ही खत्म हो जाएंगी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फिजिकल नीड्स की भी हो। तो बड़े बड़े फिर हमारे को ये सीटी स्कैन की क्या जरूरत है? तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप
कहीं पे भी देखें कि कोई इस यूनिवर्सल स्कैनर को या इसको कहते हैं कि जिसके डाउजिंग प्रिंसिपल को लेकर जा रहे हैं या जो नॉन साइंटिफिक डिवाइसेस हैं, इनको एनर्जी शिफ्ट में कहीं पे भी इनका कोई फायदा नहीं है। एब्सोल्युटली। मैं मेरे लिसनर्स को याद दिला दूं कि हमारे साथ में यहाँ पे स्टूडियो में है डिवाइन वास्तु की डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, और वो बता रहे हैं कि जैसे घरों में जो एनर्जी होती है उसे कैसे वो कैसे इफेक्ट करती है लाइफ में। और अगर इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं, जैसे इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं, वहां तो चेंजेस किए जा सकते हैं घरों में, लेकिन जैसे अगर आप अपार्टमेंट में हैं और वहां पे जैसे रेवा जी ने बोला कि साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे है, तो आप क्या करेंगे? ये सब चीजें डिवाइन टेक्निक्स की मदद से ठीक हो सकती है। वेरी इजी टू रेक्टिफाई। कहीं अपने आप को स्केयर नहीं करें। दे डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर। इट्स वेरी इजी टू रेक्टिफाई। सिंपली दे हैव टू बैलेंस इट। जी, यू हैव टू बैलेंस द एनर्जी। अभी मैं एक और बात, अभी कल हम लोग शाम को बैठे हुए थे, तो आई वाज डिस्कसिंग वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, मेरे अपने बच्चों की तरह है, नॉट मैं गुड फ्रेंड कहूंगी, शी जस्ट लाइक माई डॉटर, वी डिस्कसिंग। तो अपनी फैमिली में ही बैठे, तो मुझे एक बात अच्छी लगी, कह रहे हैं कि जैसे कि एक इंसान जा रहा था, ठीक है, तो उसकी गाड़ी खराब हो गई, पास में से कोई गुजरा, उसने बोला कि आप मेरी गाड़ी ठीक नहीं हो रही, जरा ठीक करो। उसने एक हथौड़ा उठाया और जोर से मारा और वो गाड़ी का जहां पे मारा था गाड़ी ठीक हो गई। और उसने बोला जी मेरे को दीजिए $200। उसने बोला है एक हथौड़ा मारने के $200 मांग रहा है? कहता जी मैं हथौड़ा मारने के नहीं मांग रहा हूँ, हथौड़ा कहाँ मारना था मैंने उसके मांगे। एब्सोल्युटली। हथौड़ा तो कहीं भी मार सकते हो, कहाँ मारना है तो उसके चाहिए, उस बात की। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन वास्तु है वो आपको ये जरूर बताता है कि डोंट वरी, वी आर हियर टू टेक केयर। कहाँ करना है, क्या करना है, वो हम आपको बता सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आपको वही बैलेंस एनर्जी करनी है, बैलेंस योर लाइफ एंड कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शंस विद रेवा जी। और स्टूडियो का नंबर वही है, आप फोन कर सकते हैं 5107701550। स्टूडियो लाइंस अब खुल चुकी हैं आपके कॉल्स लेने के लिए। रेवा जी यहाँ पे रेडी हैं, तो डेफिनेटली आप फोन कीजिए यहाँ पे। और हमारे स्पॉन्सर्स को हम एक फिर से थैंक यू बोलना चाहते हैं। हमारा दिस आवर इज स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमाउंट। रेवा जी, फोन की लाइन यहाँ पे बहुत देर से बज रही हैं, जल रही हैं, तो लेट्स टेक ऑन आवर फर्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने भी बताया कि साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक बार पहले कहते हैं कि जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना बहुत अच्छी बात है। अक्सर मास्टर बेडरूम के साथ पूरी स्वीट भी आती है, सो दैट वुड इंक्लूड बाथरूम। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल, आपने कहा कि जी बिल्कुल सही बात है कि साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, और लेकिन साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम जरूर होना चाहिए। जब आप अपने लॉट को डिवाइड करेंगे, जहां साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां पर बेडरूम हो जाए, और उसके बाद जो बाथरूम है दैट कैन बी कम टुवर्ड्स द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, दैट इज द राइट प्लेस। जी अच्छा, तो आप एक बार और ये बताएं कि जो टॉयलेट जो है ईस्ट की तरफ फेसिंग हो इसी सिचुएशन में, तो उसको कैसे रेमेडी किया जा सकता है? एक बार दोबारा बताएंगे आपका सवाल। ईस्ट की तरफ अगर टॉयलेट, राइट, द टॉयलेट itself actually अगर ईस्ट की तरफ फेस करता है तो उसको कैसे रेमेडी किया जाए? देखिए, अगर उसको ईस्ट की तरफ अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, क्योंकि ईस्ट की तरफ में अगर टॉयलेट सीट वाइल सिटिंग ऑन द पॉट, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, वो एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है और अभी है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप टॉयलेट की ईस्ट वॉल के ऊपर में एक छोटा मिरर लगा दीजिए, लेकिन मिरर बड़ा नहीं हो, मतलब कि इफ यू आर सिटिंग ऑन द सीट ऑन द टॉयलेट, इट शुड नॉट, योर फेस शुड नॉट विजिबल इन दैट मिरर। So on behind, so it should be behind you. No, not behind you. You are facing towards east while sitting on the pot. This is what you are saying. Correct. If you are sitting on the toilet seat, you are facing towards east. Then the mirror has to be on the east wall. So the mirror has to be on the east wall. East wall, so because you are facing towards east. Because you are facing towards east, but it should not reflect your body. Oh, got it. Okay, all right. So that's the quickest remedy. Thank you so much, Reva. You're welcome, dear. Thank you for calling in and stay tuned.
राइट. सो रेवा जी, आप अभी एनर्जी वास्तु स्ट्रक्चर मेरा सवाल हमेशा रह जाता है. आपके कॉलर्स जो इतने आपको प्यार करते हैं उनसे लेट्स टेक अनदर कॉलर. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो. आप हाँ जी. आप प्लीज पीछे से रेडियो जो है रेडियो बंद करेंगे. ठीक है. मेरा नाम अजय सिंह है. हेलो. लुक्स लाइक वी ड्रॉप द कॉल. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर. हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो. हाँ जी. Yeah, hi. My name is Anu. I'm calling from Fremont. I have a question. जी अनु जी बताएं. हेलो. पूजा के लिए कौन सा लोकेशन, डायरेक्शन, पूजा जहाँ पे हम करते हैं वो should face which direction? देखिए, पूजा के लिए अगर आप प्रेयर रूम अपना घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं दैट इज द बेस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट. और भगवान को आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखें. मतलब आप जब पूजा कर रहे हैं आप नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ फेस कर सकती हैं. ओके. नहीं आ रहा है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, कहीं नहीं आ रहा. साउथ फेसिंग हो रहा है 196. जी नहीं, साउथ फेसिंग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि साउथ फेसिंग करते हैं इसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकली भी, शास्त्रों के हिसाब से भी, कि हम लोग जैसे यम की पूजा कर रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जहां से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलनी है, जहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है, वो आपके पीठ के पीछे आ जाएगा. कभी आप देखें कि आपके घर पे कोई आया है, जुपिटर है, कोई बड़े हैं, आप उनकी तरफ पीठ करके बैठेंगे तो हाउ यू विल गेट द ब्लेसिंग्स. तो यू हैव टू फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्ट, बिकॉज द लाइफ बिगिंस फ्रॉम दीज डायरेक्शंस. ओके. तो बेडरूम अगर नॉर्थ में, फिर बेडरूम में भी नहीं रखते हैं पूजा करना? नहीं, बेडरूम में भी नहीं रखते. आप अपना लिविंग रूम में देखें या डाइनिंग टेबल देखें. ओके. मतलब अदर देन बेडरूम कहीं पे भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, राइट? जी. ओके. थैंक यू रेवा जी. यू आर वेलकम. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है. प्लीज कॉल अस बैक, वी कैन नॉट हियर यू. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. रेवा जी की एलोवेरा का प्लांट कहाँ लगाना चाहिए? क्या कहाँ लगाना चाहिए? एलोवेरा का प्लांट कहाँ लगाना चाहिए रेवा जी? देखिए, एलोवेरा का प्लांट अगर आपको लगाना चाहिए तो थोड़ा सा, वैसे तो मैं प्रॉपर्टी पे कभी भी नहीं अलाउ करती हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. अगर आपको, क्योंकि उसके साथ में थोड़ा मिल्क आता है, मिल्की आता है, तो जिसको स्टार्च आता है वो आपको फायदा नहीं देते हैं. अगर आप इसको लगाना भी चाहते हैं तो लेट इट बी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. बहुत बैकयार्ड की तरफ ले जाइए, पीछे की तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगाइए, कि जो एयर एलिमेंट से रिलेटेड है, ज्यादा विजिबिलिटी उसकी आपको ना मिले. Okay, thank you. Right, I hope that answers your question. Thank you for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Rewa ji. Hey, this is Tejo, and I would like to check with Rewa ji whether she can come down to our home today itself for doing the Vastu. Sejal, today it's not possible, but dear, you can call me after the radio show. Absolutely. And Sejal, you can call Rewa ji on her direct number. It's 5108683338. Once again, 5108683338. आप रेवा जी से अब से आधे या एक घंटे में फोन पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं. Alright? Can you repeat the number? 5108683338. Okay. Alright. Thank you very much for calling in and stay tuned. Thank you, Sejal. Hello, you're live on air with Rewa ji. Hi. Hanji. I wanted to ask Rewa ji that I recently purchased a house and it has a water fountain on the south side of the house. मेरी आपसे ये एडवाइस है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट में कभी भी वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए. आपका पैसे का लॉसेस लेकर आता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है. मेरी आपसे एडवाइस है, अगर आप इसको बंद कर दीजिए और आप अगर नॉर्थ की तरफ ले जाएं तो बहुत ही अच्छा है. इट विल वेरी बेनिफिशियल टू यू. और अगर जो बंद नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट्स वेरी टिन, आपको फायदा नहीं देगा, फिर आपको डिवाइन टूल्स की हेल्प लेनी होगी. Okay. Then we have to shift this energy from one direction to another direction.
Okay. Right. And to shift that energy, you can definitely please get in touch with Reva ji. Her direct number, once again, I will give you. It's 510-868-3338. जो रीमॉडल, रिकंस्ट्रक्शन या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें आप डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं डिवाइन टूल्स, डिवाइन टेक्निक्स की मदद से. तो रेवा जी का नंबर है 510-868-3338. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट कॉलर. रेवा जी, हाई, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. नमस्ते जी. नमस्ते जी. क्वेश्चन पूछना था. जी हाँ, बताइए. कि आप बताती है ना कि साउथ ईस्ट फ्रंट डोर नहीं होना चाहिए. जी. तो हमारा साउथ ईस्ट है 128 डिग्रीज. जी. साउथ ईस्ट. जी. तो आप बताती है ना कि आपके तो प्रोग्राम है बहुत दिन से बोलती कि राइट बल्ब और वायर लगा दे या पेंट कर देना, घर में रेंट करते हैं. जी. आप एक काम करिए, अगर आप घर पे रेंट घर में रह रहे हैं, अगर साउथ ही, बिल्कुल आपने सही डिग्री बताया. सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारे को ऐसे कॉलर मिले जिन्होंने मुझे बिल्कुल सही डिग्री बताया है. और डिग्री से हमें बिल्कुल पता चलता है कि किस डायरेक्शन को इट इज फेसिंग. 128 डिग्री इज रिलेटेड विद द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. आपका जो कर रहा है, आप अपने एंट्रेंस डोर के बाहर की तरफ में, दरवाजा का जो बाहर है, वुडन फ्रेम होता है, उसके चारों तरफ, 3 तरफ में, नीचे से लेके ऊपर से घुमाता हुआ साइड में लेते हुए आप ओरिजिनल सिल्वर वायर होता है, ज्वेलर से आपको मिल जाएगा, उसको लगाइए. और साथ ही साथ में वहां पर रेड कलर का कोई पेंट नहीं करें, सिल्वर वायर लगा दीजिए. और या चांदी का अगर सिल्वर कॉइन जिसपे गणेशा जी हों, उनको बैक टू बैक भी आप लगा सकते हैं. तो बाहर के फ्रेम में, पूरा फ्रेम पे लगाना है? जी हाँ जी, बिल्कुल फ्रेम पे लगाना है. पूरा राइट? जी. वो कोना पे पूरा? हाँ जी, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक लेकर उसको लगा दीजिएगा. मेजरमेंट करके ले सकते हैं आप ज्वेलर से. नहीं तो अंदर से नहीं लगा सकते? नहीं, अंदर से नहीं, बाहर को लगेगा, अंदर को नहीं, बाहर को. जो लाइट बल्ब आप बताती है ना जगाने को, देखिए वो जो बल्ब, आप देखिए, आप यहाँ पे हमको बाकी लिस्टर्स को भी मैं बताना चाहूंगी. घर हमारा अगर साउथ ईस्ट फेसिंग है तो उसको आप सिर्फ सिल्वर वायर से रेक्टिफाई करेंगे, मतलब कि फायर को ठंडा करना है. अगर मैं रेड लाइट लगाऊंगी तो ऑलरेडी वो फायर एरिया है, रेड लाइट से और गर्म हो जाएगा और ज्यादा परेशानी आएगी. फायर हम कब, रेड लाइट हम कहाँ पे लगाते हैं? अगर हमारी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, और किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट में आपके पास में कोई बेडरूम है, अगर मास्टर बेडरूम है, वहां रेड लाइट लगाएंगे तो झगड़ा ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स ज्यादा आ जाएंगी घर की फीमेल को. हम लोग क्या करते हैं कि अगर लिविंग रूम होता है या वहां पर आप मास्टर बेडरूम नहीं यूज कर रहे, एज अ गेस्ट रूम यूज कर रहे हैं, वहां हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप इसको रेड लाइट लगाइए ताकि फायर को जगह मिले. और अगर आप सो रहे हैं तब आप ग्रीन लाइट लगाइए. लेकिन ये घर की एंट्रेंस है, कभी भी आप रेड लाइट घर की एंट्रेंस पे मत लगाइए, अदरवाइज यू विल गेट मोर प्रॉब्लम्स, मोर ज्यादा परेशानियां आएंगी, क्योंकि वो फायर इनहेंस हो जाएगी ज्यादा. अच्छा, तो ग्रीन लाइट लगा दें? आप ग्रीन लाइट लगाना चाहें अंदर की तरफ लगा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, पर चांदी की तार जरूर लगाइए. ओके, थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड. राइट, सो रेवा जी, हम लोग बहुत कम समय हमारे पास में बचा है और यहाँ पे हम लोगों को अभी ट्रिविया भी करना है, तो हमारे पास में कुछ एक सवाल है. आई थिंक शो में कुछ पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है. डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद, है ना? आपको यहाँ पे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट वील ट्राई एंड फिक्स दिस थिंग. तो ट्रिविया की जब बात होती है रेवा जी, सो मैं लिसनर्स यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी गेम खेलते हैं. मैं रेवा जी से पूछूंगी एक सवाल और रेवा जी मुझे जवाब देंगी उसका, और आप मुझे बताएंगे कि रेवा जी ने जो जवाब दिया वो सही दिया या गलत. आजकल ट्रिविया मेरे से चलना शुरू हो गया है हीरा. थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है रेवा जी. थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है. चलिए ठीक है, आपके कोर्ट में बैठे हैं, जो आप कहेंगे सर माथे पे. नहीं रेवा जी, ऐसे तो खैर. रेवा जी, आप रितेश जी के शो में वी वर टॉकिंग अबाउट श्री श्री रविशंकर जी, राइट? एब्सोल्युटली. तो मैं मेरे लिसनर्स को फिर से बताना चाहती हूँ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, सीधा इट इज फॉलिंग इनटू योर लैप टू ट्रांसफॉर्म योर परसूट ऑफ हैप्पीनेस इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस. जी हाँ, श्री श्री रविशंकर
द आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर, एब्सोल्युटली सही समझा आपने, वो आ रहे हैं बे एरिया में. यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम इन द प्रेजेंस ऑफ श्री श्री रविशंकर जी. ही इज द वर्ल्ड रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर एंड द फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन. वो होंगे बे एरिया में, यहाँ अपने ही सेंटा क्लारा कन्वेंशन सेंटर में जून 27th, 28th एंड 29th को. तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए at myhappinessprogram.org पे, या फिर फोन कर सकते हैं 650-479-6548. उसके अलावा आप डेफिनेटली आर्ट ऑफ लिविंग का शो होता है एवरी ट्यूसडे ऑन रेडियो जिंदगी फ्रॉम 12 to 1 PM. आप लॉग ऑन कर सकते हैं, आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं. बट डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम at myhappinessprogram.org या फिर 650-479-6548. तो रेवा जी, मैं आपसे वही ट्रिविया वाली बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ. आप अभी डायरेक्शंस की हम बात कर रहे थे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है अर्थ एलिमेंट की? विच डायरेक्शन इज अर्थ एलिमेंट जिससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है? अर्थ एलिमेंट इज रिलेटेड विद द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. अर्थ एलिमेंट इज रिलेटेड विद द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ऑल राइट. तो लिसनर्स, यहाँ हमारा ट्रिविया शुरू होता है. आपको मुझे बताना है कि रेवा जी ने जो जवाब दिया वो सही है या गलत है. मैंने रेवा जी से पूछा कि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है. रेवा जी ने बोला नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. आप मुझे बताइए ये सही है या गलत है. नंबर वही है 510-770-1550. ऑल राइट, 510-770-1550. अगर ये जवाब गलत है रेवा जी का, तो सही जवाब क्या है ये भी आपको मुझे बताना है. वंस अगेन, मैंने रेवा जी से पूछा अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है. रेवा जी ने बोला नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है. अगर सही है तो मुझे बताइए ये सही है, और अगर ये गलत है तो बताइए कि सही जवाब क्या है. 510-770-1550 इज द नंबर. हमारे पास में यहाँ बहुत सारे प्राइजेस हैं हमारे रैफल के विनर्स के लिए, ट्रिविया विनर्स के लिए, स्पॉन्सर्ड बाय आवर स्पॉन्सर्स ऑफ द शो, दैट इज मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट. लेते हैं रेवा जी हमारा आज का पहला कॉल. लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से. Hello, you're on air with Reva ji. रेवा जी का आंसर गलत है और सही दिशा है साउथ वेस्ट. एंड दिस इज प्रणाली फ्रॉम सैन रेमोन. Pranali from San Ramon. Thank you, Pranali. Thank you for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. हेलो, मेरा नाम अंबर है सैन लिएंड्रो से. रेवा जी का आंसर गलत है और सही आंसर है साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट. अंबर, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड. हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. रेवा जी का आंसर रॉन्ग है. आंसर इज साउथ वेस्ट. साउथ व्हाट? साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट. अच्छा, आपका नाम क्या है और कहाँ से फोन कर रही हैं? मैं रश्मि मिलपीटर्स से. रश्मि फ्रॉम मिलपीटर्स. थैंक यू रश्मि, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. स्टे ट्यून्ड. हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. Yes, this is Mohini from San Francisco. Yes, Mohini. And रेवा जी के आंसर गलत था. तो सही जवाब क्या है मोहिनी? साउथ वेस्ट. ऑल राइट मोहिनी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड. हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. So my answer is Reva ji is not right. It is not related to northwest. So what is the correct answer? Northeast. Northeast, you saying? Yes. All right. What's your name and where you calling us from? Charu from Fremont. Charu from Fremont. All right, Charu. Thank you for calling in. Stay tuned. Sure. Hello, you're live on air with Reva ji. The right answer is southwest. And what's your name, sir? And where you calling from? Devendra Singh. Devendra Singh, sir, कहाँ से फोन कर रहे हैं? San Jose. San Jose. Thank you, Devendra ji. Thank you for calling in. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi. Hi. Reva ji's answer is absolutely wrong. Okay. The correct answer is southwest. Southwest. What's your name, sir, and where you calling us from? Aditya, and I'm calling from the I-580 West. Highway. From where? I-580 US Highway. Yes. Aditya, where do you live? I live in Dubai. You live in Dubai. All right. Okay. Thank you so much, Aditya. Thank you for calling in from 580 West. Thanks, Atan. Stay tuned. Hi, you're on air with Reva ji. Hi. So the answer for Reva ji's question was
wrong. Okay. And the correct answer is southwest. And what's your name और कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? मेरा नाम है शानू और मैं प्लेजेंटन से बात कर रही हूँ. Shanu from Pleasanton. Thanks a ton, Shanu. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Yeah, my name is Mo, and the question, what question you asked, I think you can be wrong, but not, she cannot be wrong. Okay. So, because the right answer is southwest. But she said northwest. Thank you, जी. Thank you very much for calling in. Sir, कहाँ से फोन कर रहे हैं आप हमें? Where are you calling me from? San Francisco. San Francisco. Thank you so much. Thank you and stay tuned. Welcome. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi, my name is Smita and I'm calling from Dublin. The Reva ji ने जो आंसर दिया वो रॉन्ग है. सही आंसर साउथ-वेस्ट है. Southwest. Thank you so much for calling in, Smita, and stay tuned. Hi, you're on air with Reva ji. Yeah, the answer is wrong, and the right answer is southwest. What's your name and where you calling us from? Anita from Fremont. All right, Anita ji, thank you for calling in and stay tuned. Thank you. And thank you. And this is the last caller जिसका हम कॉल अभी लेते हैं. Hello, you live on air with Reva ji. हाँ, रेवा जी का आंसर गलत है. तो सही जवाब क्या है? साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट. आपका नाम क्या है मैडम? मेरा जी पुष्पा जी. पुष्पा जी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. पुष्पा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम और कॉल्स नहीं ले पाएंगे. फोन की लाइटें जरूर जल रही हैं, तो तहे दिल से माफी चाहते हैं उन सभी कॉलर्स से जिनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं आज. आप डेफिनेटली थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एनीवे. तो रेवा जी, आपको बहुत सब लोगों ने फोन किया और कहा कि रेवा जी तो गलत है भाई, लेकिन बिल्कुल सही जवाब जरूर दिया है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, कभी कभी मुझे भी गलती करनी चाहिए ना. ये तो मजा नहीं करूंगी रेवा जी. वो तो ट्विस्ट है ना. जान के आपने तो जान के सबको ऐसा ट्विस्ट में डाला है अभी. नहीं, हमारे को जिन्होंने भी जवाब दिया सबने कॉल किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया है. Pranali from San Ramon, Amber from San Francisco, Rashmi from Milpitas, Mohini from San Francisco, Charu from Fremont, Davinder Singh ji from San Jose, Aditya from Dubai, 580 West US. 580 West US, Shanu from Pleasanton, Mo from San Francisco, Samita from Dublin, and Anita from Fremont, Pushpa ji from Fremont. आप सब ने जवाब दिया. सिर्फ हमारे साथ में जो चारू फ्रीमॉन्ट से. चारू जी, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिव विद द वाटर एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट हमेशा हमारा साउथ वेस्ट के ही रिलेटेड है. और बाकी जिसमें सबने आंसर दिया, आप सबका आंसर करेक्ट था. अब हमारा ट्रिविया चलेगा. तब तक के लिए आप हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में बताइए. मैं जरा इनको रेवा जी रैफल कर रही हैं यहाँ पे. तब तक मैं बता दूं हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में. हमारे स्पॉन्सर्स हैं मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिलपीटर्स. उनका एड्रेस है 80 रैंच ड्राइव, मिलपीटर्स, कैलिफोर्निया 95035, एंड दे आर वेरी फेमस फॉर सर्विंग द बेस्ट सिजलर फूड फॉर फाइन डाइनिंग इन द बे एरिया. और उनकी वेबसाइट है mirchmasalamilpeters.com. वेरी सिंपल, MMM mirchmasalamilpeters.com. और हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट, और उनका एड्रेस है 40976 फ्रीमॉन्ट बुलेवार्ड, फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया 94538. और उनकी वेबसाइट है सुनीता ब्यूटी सैलून USA.com, और उनका फोन नंबर है 510-797-8955. सो वंस अगेन वी आर रियली थैंकफुल. हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से हमारे स्पॉन्सर्स का, सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट एंड मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिलपीटर्स. तो रेवा जी, क्या आपके पास में रैफल विनर्स के नाम रेडी हैं? जी हाँ, बिल्कुल रेडी हैं. हमारे साथ में आज के जो हमारे सबसे पहले विनर आए हैं, जिनको मिलती हैं जुलाई 14 की 2 टिकट्स. एब्सोल्युटली. फर्स्ट विनर हैं, आप बताइए जी कौन सी टिकट्स दे रही हैं आप? गिप्पी ग्रेवाल शहरी मान का शो हो रहा है जी. उनकी टिकट्स दे रही हैं, 2 टिकट. उनकी टिकट्स दे रहे हैं, और वो मिल रही हैं दविंदर सिंह फ्रॉम सन होजे. दविंदर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपको मिलते हैं गिप्पी ग्रेवाल शहरी मान के शो की 2 टिकट्स. और रेवा जी सेकंड विनर है हमारे साथ में मिर्च मसाला का मजा खाने का टेस्ट लेने का. वो है शानू फ्रॉम प्लेजेंटर. शानू, कॉन्ग्रेचुलेशंस. सिजलर फूड फॉर 2 पीपल, लंच और डिनर एट मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन. और थर्ड हमारे साथ में आ जाती हैं जिन्होंने
जीता है facial with free bleach at Sunita Beauty Salon. That is Pranali from Syndrome 1. All right, Pranali, congratulations once again. You have won yourself facial with free bleach from Sunita Beauty Salon. Congratulations to all the winners. आप सब email कीजिए मुझे era@radiozindagi.com and I will tell you how you can collect your coupons from us. तो रेवा जी, शो तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक आपकी हमेशा की स्टैंडर्ड क्विक टिप. जल्दी से टिप दूंगी और जल्दी से आप ईमेल कर दीजिएगा ईरा को अपने कूपन्स प्राइज लेने के लिए. और आज की क्विक टिप है, जल्दी से डिस्प्ले गोल्ड स्टार इन योर वर्क एरिया. दिस क्योर encourages you to do best and to succeed financially and professionally. तो अपने वर्क प्लेस में एक गोल्ड स्टार को डिस्प्ले करना चाहिए. बिल्कुल जल्दी से कर दीजिएगा, देरी मत करिए. All right, listeners, do not forget to tune into Reva Ji's show on Thursdays 3 to 4 p.m. and Ritesh Ji at on 2 to 3 p.m. on Thursdays and Divine Junction from 9 to 10 in the morning. And this is RJ Ira signing off. हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी. जिए जाओ. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.